हेलो एवरीवन। लास्ट टाइम हमने देखा इससे पहले पार्ट में जहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर टिल 2016 हमने डिस्कस किया. नाउ विल स्टार्ट विद 2017. सो व्हाट वाज द क्वेश्चन? द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट सिस्टम इन इंडिया हैज़ नॉट प्रूव टू बी इफेक्टिव instrument of governance. So this is about local self-government system. Critically examine this statement and give your views to improve the situation. So you can consider this question in Indian polity also, and at the same time this can be considered in governance also. So this is very important. The local self-government system, it is about system. So this is about what? Panchayati Raj system and plus urban local bodies, that is municipality and all, right? So this is our local self government, which was connected with article 40, right? Has not proved to be effective instrument of governance. Effective instrument of governance, that means it is considered as instrument of governance. But what is the problem? This is not effective. Okay, so when it was came in the system, that was 1992 73rd Amendment Act 1992 passed in that year only, and it was implemented from 24th April 1993. That was Panchayati Raj system. And about urban local bodies, that was again 74th Amendment, 74th Constitutional Amendment Act 1992, that was implemented from 1st June 1993. Okay, so this was the implementation date. So now what was the question basically? So this is not effective instrument of governance. That means we are considering instrument of governance. So what is the use of this local self government in the governance system? So basically for the program implementation, for the empowerment of this local people, rural people, especially with the help of ग्राम सभा एंड ऑल. तो आप देखोगे कि बॉटम लेवल पर ये सारी चीज़ें काम करती हैं. अब बिफोर 1992, yes, पंचायती राज was there, but obviously it was not effective because it was not constitutional provision, and it was not compulsion. I mean, there was no compulsory provisions in the constitution. So it was implemented by the state government, and as per their own discretionary power and as per their own choices. So before, you see, like in 1952 we implemented community development program, and in 1953 there was one program that was National Extension Services. Okay, and upon the failure of this program, one committee was implemented, and that was Balwant Rai Mehta committee. They suggested, that committee suggested for the 3-tier structure for Panchayati Raj system. Okay, and district panchayat, intermediate panchayat and gram panchayat. So वहाँ से आप देख पाते हो कि इसकी एक शुरुआत मानी जाती है. Then on 2nd October 1959 the first Panchayati Raj system was established in Rajasthan, Nagaur district. Okay, that was the first initiation. And after that in 1977 one committee on Panchayati Raj system was there. That was Ashok Mehta committee. That was first committee on Panchayati Raj system. The title of committee was Panchayati Raj system, committee on Panchayati Raj system. So, and the first committee which suggested the Panchayati Raj system was Balwant Rai Mehta committee. So there is a difference, okay, in both the committees. So at the time of Janata Dal government, this committee came, especially this Ashok Mehta committee, and that committee suggested constitutional status for the Panchayati Raj system. They suggested for Nyaya Panchayat also, and Ashok Mehta committee suggested for participation of political parties in Panchayati Raj system, which is not there till now. Okay, and in between some more committees came, and finally in 1985 on the recommendation of L.M. Singhvi committee, the Panchayati Raj was given constitutional status, and finally it was inserted in Part 9 and Part 9A from Article 243A to 243O, 243 to 243 O for Panchayati Raj. There is a 16 article. There are 16 articles, and from 243P to 243ZG
18 articles are there for urban local bodies. Okay, so these are the background for Panchayati Raj system and what was there. So आप देखोगे कि हमारे कंट्री में नेशनल गवर्नमेंट है, देन स्टेट गवर्नमेंट है, देन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है. दिस इज यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. ओके, एंड ऑब्वियसली I mean below the district administration we have what local self bodies are there. So here Panchayati Raj institutions PRI and urban local bodies. Okay, so municipalities वगैरह सारे आ जाएंगे. So this is the structure. तो आप देखोगे डिस्ट्रिक्ट के नीचे अब डिस्ट्रिक्ट में आप मानते हो I mean this is the key point for the implementation of all the programs and different schemes for the districts. So district collector is responsible to implement all those things and district is considered as important unit of our country. और आप देखोगे यहीं से सारा कुछ नीचे की ओर जाता है, परकोलेट करता है, राइट. और यहाँ से कलेक्टर सारी चीज़ों को कोऑर्डिनेट कर रहा है. इज़ कोऑर्डिनेटिंग अथॉरिटी फॉर स्टेट गवर्नमेंट, फॉर दी नेशनल गवर्नमेंट ऑल्सो. और ब्यूरोक्रेट्स आप IAS IPS ऑल इंडिया सर्विसेज एंड इंडियन फॉरेस्ट सर्विस को यहीं पर अपॉइंट करते हैं आप स्टेट में. तो ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में आप देखोगे ऑल इंडिया सर्विसेज के लोग काम कर रहे हैं. अब नीचे लेवल पर पहले क्या था, जब पंचायती राज नहीं बनाए थे तो इलेक्टेड गवर्नमेंट कोई भी नहीं थी, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं थे. सो अभी इनके रोल में, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के रोल में क्या हो गया, क्वालिटी बढ़ गई, क्वांटिटी कम हो गई और नीचे इनके पास कोऑपरेट करने के लिए पंचायती राज सिस्टम हो गया. नाउ रूरल पीपल हैव इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स. सो अब वो ज़्यादा एम्पावर होकर काम कर रहे हैं. बट फिर भी क्या कह रहा है क्वेश्चन, so the local self government system in India has not proved to be effective instrument of governance. मतलब अभी भी हम उन चीज़ों के थ्रू काम नहीं कर पा रहे हैं. so there are certain challenges. वो challenges क्या हैं, आप देखोगे पंचायती राज को completely हमने पावर नहीं दिया है, स्पेशली टैक्सेशन का पावर नहीं दिया है. फिर आप देखोगे जो इनके लिस्ट है 7th 11th शेड्यूल एंड 12th शेड्यूल, दोनों के लिस्ट में, दोनों के फंक्शंस में डिस्पैरिटी है, काफ़ी कुछ इम्बैलेंस है. बहुत कुछ उसमें शामिल किया जाना है और बहुत कुछ शामिल नहीं भी होना चाहिए, रिमूव किया जाना चाहिए. वो भी एक पॉइंट होगा. दूसरी चीज़, पंचायती राज को फाइनेंस करना शुरू किया 12th फाइनेंस कमीशन के बाद, जहां पर 20,000 करोड़ का कॉर्पस रिजर्व किया था फॉर आई मीन अर्बन लोकल बॉडीज़ 5,000 करोड़ किया था, एंड फॉर रेस्ट ऑफ दी 15,000 अमाउंट फॉर दी रूरल लोकल बॉडीज़, राइट. सो पंचायती राज के लिए 15,000 करोड़ रुपए का रिजर्व रखा और डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट से इस पंचायती राज को जाना है, ये 12th फाइनेंस कमीशन ने कहा. और वहाँ से लेकर अभी तक हर फाइनेंस कमीशन इसको रिकमेंड कर भी रहे हैं. तो आप देखोगे पैसा आने से काफ़ी कुछ फ़र्क तो पड़ा है. अब यहाँ पर काम हो रहे हैं रूरल एरियाज़ में, बट अभी भी एक बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि इंडिया का जो पंचायती राज सिस्टम आप देखोगे प्योर रूरल एरियाज़ के लिए है, जहाँ पर विमेन रिजर्वेशन हमने दिया 1/3 और 243 डी में रिजर्वेशन दिया, डी एंड टी में रिजर्वेशन दिया. दैट वाज गुड इनिशिएशन. ओके, एक क्वेश्चन भी बहुत पहले आया है, साइलेंट रेवोल्यूशन कहा इसको यूपीएससी ने अपने क्वेश्चन में, और वहाँ से क्वेश्चन भी आ चुका है आपको पंचायती राज से. अब प्रॉब्लम यह है कि वो जो महिलाएं हैं वो कितना काम कर पा रही हैं. नो डाउट दे आर वर्किंग. जहाँ पर एजुकेशन बढ़िया है वहाँ पर बढ़िया काम हो रहा है. जहाँ एजुकेशन कम है या अवेयर नहीं है अपने राइट्स को लेकर, वहाँ पर उनके हस्बैंड कोऑपरेट करते हैं. सो आपने सुना भी है सरपंच पति का कॉन्सेप्ट सुना होगा. सो गवर्नमेंट ने हालांकि स्ट्रिक्ट बोल रखा है कि उन्हें एम्पावर होने दिया जाए, उन्हें काम करने दिया जाए, लेकिन उनकी मजबूरी है, पूरी लाइफ कभी उनको इन सब चीज़ों का एक्सपीरियंस नहीं है, फिर भी वो काम कर रही हैं. बट लास्ट 10 ईयर्स में आप देखेंगे काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट्स हैं और सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू काम हो रहा है. विमेन सरपंच काफ़ी लीड ले रही हैं, उनके होने से बेनिफिट भी हो रहा है. बट स्टिल जो गवर्नेंस का पार्ट इम्प्लीमेंटेशन जैसा होना चाहिए वो अभी भी चैलेंजिंग है. 17 और आज में काफ़ी फ़र्क है, नो डाउट. 3 ऑलमोस्ट 6 ईयर्स हो चुके हैं. 6 ईयर्स में आफ्टर कोविड काफ़ी कुछ चेंजेस आ चुके हैं. तो जिस साल ये क्वेश्चन पूछा है और अब आप इसको लिखना पड़े तो अभी काफ़ी कुछ पॉजिटिव चेंज हुए हैं. हमने काफ़ी एम्पावर किया है. जैसे आप देखोगे इंटरनेट की अवेलेबिलिटी हो गई, पटवारी अब डायरेक्टली खुद अपना काम कंप्यूटर से करते हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स हमने अपलोड कर रखा है. सो ई गवर्नेंस का अप्रोच वहाँ तक हो गया. देन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में भी आप देखोगे कि फेस रिकॉग्निशन या थंब की ज़रूरत पड़ती है. सो इस तरह के अपडेट्स हो चुके हैं.
सो इफेक्टिव तो अब हो रहा है, मतलब इस क्वेश्चन से हट के आप आंसर भी कर सकते हैं कि देर आर सर्टेन इनिशिएटिव टेकन बाय द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट गवर्नमेंट, सो दैट इज़ मोर इफेक्टिव। अभी रिसेंटली केरल में आपने सुना होगा इंटरनेट, केरल ने अपना रूरल इंटरनेट अलग से स्टार्ट किया है, वो भी आप एग्जांपल ले सकते हैं। फिर रूरल एरियाज़ में आप देखोगे पंचायती राज को एम्पावर किया है, खासकर कंस्ट्रक्शन एरियाज़ में, रूरल एरियाज़ में जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहे हैं विद द हेल्प ऑफ मनरेगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना है ना, सिलेंडर उज्ज्वला स्कीम, इन सब के चलते रूरल एरियाज़ में काफ़ी इंप्रूवमेंट्स हैं। तो स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन, इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हो पा रहा है, पहले नहीं हुआ था, इसलिए ये क्वेश्चन भी है। एंड गिव योर व्यूज़ टू इम्प्रूव दी सिचुएशन, ये कैसे कर पाएंगे? सो पंचायती राज को ज़्यादा राइट्स देने की ज़रूरत है, विमेन एम्पावरमेंट तो कर दिया रिजर्वेशन से, उन्हें ट्रेनिंग की ज़रूरत है, एजुकेशन की ज़रूरत है, उनकी हेल्प के लिए वहाँ पर और भी लोगों को भेजे जाने की ज़रूरत है, और कुछ ट्रेंड पर्सन्स को भेजे जाने की ज़रूरत है, वेल एजुकेटेड पर्सन्स वहाँ पर होंगे। सो डेफिनेटली, और सभी पंचायत को हमें कनेक्ट करना होगा, ऑनलाइन कनेक्ट करना होगा, सो दैट वहाँ का डेटा, वहाँ की सारी चीज़ें अपडेटेड तौर पर आ जाएं। अब पटवारी जो है उनके लिए कंपलसरी है कि 6 मंथ का डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए, सभी स्टेट्स में लगभग कंपलसरी कर दिया है। और आप देखेंगे जो ऐसे कई एरियाज़ हैं इंडिया के जहाँ पर सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू काफ़ी अच्छा काम हो रहा है, माइक्रो फाइनेंस के थ्रू रूरल एरियाज़ में काफ़ी काम हो रहा है। बट प्रॉब्लम ये है कि जो हमारा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है वो कितना बढ़िया से काम कर रहा है, उसके एक एनालिसिस की ज़रूरत है। बिकॉज ऑलमोस्ट 30 ईयर्स कंप्लीट होने जा रहे हैं पंचायती राज के, तो हमें सोचने की ज़रूरत है कि और बेहतर क्या किया जाना चाहिए, राइट। सो ये पंचायती राज के बारे में काफ़ी, इसको डिटेल में आपको जाना चाहिए, पढ़ना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगेन 17 में क्या पूछा? हाउ डू प्रेशर ग्रुप्स इन्फ्लुएंस इंडियन पॉलिटिकल प्रोसेस। हमने एक क्वेश्चन पहले भी देखा है प्रेशर ग्रुप्स का, और ये रिपीटेड क्वेश्चन जैसा ही है। डू यू एग्री विद दिस व्यू दैट इनफॉर्मल प्रेशर ग्रुप्स, सो यहाँ पर क्या बोला? इनफॉर्मल प्रेशर ग्रुप्स हैव emerged as more powerful than formal pressure groups in recent years। सो पहले ही क्वेश्चन आ चुका है, इसी टोन में क्वेश्चन आ चुका है। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं सर, आई मीन फॉर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स कितने साल का हम कवर करें। सो मेरा मानना है कि एटलीस्ट 20-30 ईयर्स का क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, देखना चाहिए। उसका बेनिफिट ये मिलता है कि ट्रेंड आपको समझ में आता है कि कब कौन सी चीज़ क्यों पूछी जा रही है, सो दैट यू कैन एनालाइज फॉर दिस ईयर ऑल्सो, फॉर द कमिंग ईयर्स ऑल्सो, जब भी आपको मेंस देना है। सो एक अंदाज़ मिलता है। तो आप देख पाते हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस पहले भी आए। तो प्रेशर ग्रुप्स के बारे में आप पढ़ते हैं, सोशियोलॉजी में पढ़ते हैं, देन PSIR में पढ़ते हैं, देन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ते हैं, और फिर GS में, पॉलिटी में भी पढ़ते हैं, और प्लस गवर्नेंस में भी पढ़ रहे हैं, राइट। सो आप देखोगे प्रेशर ग्रुप्स एक कॉमन टॉपिक है और कई जगह आपको हेल्प कर रहा है। सो सभी जगह पर इसको सोचने समझने की ज़रूरत है। और क्या बोला? इनफॉर्मल प्रेशर ग्रुप्स। सो इनफॉर्मल दोज ग्रुप्स विच आर नॉट रजिस्टर्ड, लाइक जब हम कहते हैं कि कुछ आंदोलन हो रहा है ना, या कहीं पर लोग ग्रुप में निकल कर आ रहे हैं, या कहीं पर भी कोई भी ग्रुप बन रहा है, सोशल मीडिया का इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। लोगों ने कास्ट के हिसाब से अपने नाम बना लिए, धर्म के हिसाब से एक ग्रुप बना लिया, राइट, रीजन के हिसाब से ग्रुप बना लिया। तो इन सभी चीज़ों का प्रेशर कहीं ना कहीं पर विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया आप देख पाते हैं, या फिर पब्लिकली आंदोलन के तौर पर आप देख पाते हैं कि वो फॉर्मल कोई ग्रुप नहीं है, कोई रिजर्व्ड आई मीन रजिस्टर्ड ग्रुप नहीं है, इवन दो उसका प्रेशर गवर्नमेंट पे ज़्यादा है। सो प्रेशर ग्रुप में हमने बात किया था, पहले का क्वेश्चन हमने देखा हुआ है, आप पार्ट 1 इसका देखिएगा, इनफैक्ट पार्ट 2 देखिएगा, ये पार्ट 3 है वीडियो का। सो आप देखेंगे पार्ट 2 में जो क्वेश्चंस हैं वो पहले मैंने प्रेशर ग्रुप्स डील किया है। सो प्रेशर ग्रुप्स के तौर पर हम और इंटरेस्ट ग्रुप मैंने बात की थी आपसे। सो प्रेशर ग्रुप में कोई भी हो सकता है, NGO, सिविल सोसाइटी, या कोई रजिस्टर्ड ग्रुप जैसे ट्रेड यूनियंस हो सकते हैं, स्टूडेंट यूनियन हो सकता है। तो ये सब प्रेशर ग्रुप्स हैं। अखिल भारतीय किसान आंदोलन, ये प्रेशर ग्रुप्स हो सकता है। व्यापारियों का ग्रुप प्रेशर ग्रुप हो सकता है। इंटरेस्ट ग्रुप में मैंने एग्जांपल दिया था, फिक्की, एसोचेम, CII, इन सब का एग्जांपल दिया था। तो इनका प्रेशर कैसे काम करता है, और इंडियन पॉलिटिकल प्रोसेस को बोला। पॉलिटिकल प्रोसेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। सो पॉलिटिकल प्रोसेस क्या होगा, आप देखोगे इलेक्शन को ये अफेक्ट करता है, देन दे अफेक्ट पॉलिसी मेकिंग ऑल्सो, ओके, इनको भी करता है। देन आप देखोगे कि कैंडिडेट्स
किसको टिकट मिलनी है उसको भी अफेक्ट करते हैं ये लोग प्रेशर बनाकर। तो कैंडिडेट चूज़ करना, पार्टी जब टिकट देती है तो उनको भी ध्यान में रखती है। फिर आप देखोगे कि जब भी बात आती है गवर्नमेंट को सपोर्ट करने की, वहाँ पर कोई फैक्ट्री डालना है या कोई एस्टेब्लिशमेंट करना है, तो भी इस तरह के ग्रुप्स का प्रेशर क्रिएटेड होता है। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। सो बहुत बड़ा चैलेंज है आज की डेट में, लॉबिंग हो जाती है सोसाइटी में। सोशियोलॉजी और PSIR में आप पढ़ते हैं, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ते हैं, वहाँ पर आपको अंडरस्टैंडिंग होती है कि किस तरह से लोग कास्ट की लॉबिंग करने लगे हैं। मान लो एक किसी जाति के 40-50 लोग एक साथ हैं गांव में, किसी गांव में या कहीं पर भी, सो उनकी वोट बैंक की कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा है। सो वो भी एक प्रेशर होता है कि अच्छा इनके पास 40 वोट हैं तो दे कैन डू एनीथिंग। तो इस तरह का भी एक प्रेशर क्रिएट होने लगा है। और कहीं ना कहीं पर कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स भी आप देखोगे इस क्वेश्चन में आपको लिखना होगा, ठीक है। सो यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा कि इनफॉर्मल प्रेशर ग्रुप कैसे पावरफुल हुआ है देन फॉर्मल, क्योंकि फॉर्मल की अपनी लाइन और लेंथ होती है, वो एक दायरे में ही रहकर बातचीत करते हैं या बार्गेन करते हैं। इनफॉर्मल में कई बार आप देखोगे कि ये हर्ड का रूप ले लेती हैं, भीड़ का रूप ले लेते हैं। और भीड़ और ग्रुप में आपको पता है अंतर है, भीड़ की कोई पहचान नहीं है, दे डोंट हैव एनी रिकॉग्निशन, दे डोंट हैव एनी स्ट्रक्चर, दे डोंट हैव एनी ऑर्गेनाइजेशन, और वो सिर्फ एक भीड़ की शक्ल में आते हैं और प्रेशर क्रिएट करके जा सकते हैं। लेकिन आपको कुछ एग्जांपल्स देने होंगे, लाइव एग्जांपल्स दे सकते हैं। जैसे आपको पता होगा निर्भया केस के बाद लोग सड़कों पर उतर आए थे, उनका बहुत ज़्यादा प्रेशर था। हालांकि कोई एक ग्रुप नहीं बोल रहा था, लेकिन वो भी प्रेशर इनफॉर्मल प्रेशर है। देन अचानक से सोशल मीडिया या फिर जो वेल रिकॉग्नाइज्ड न्यूज़पेपर हैं, मीडिया हैं, वहाँ पर बड़े बड़े थिंक टैंक या फिर इंटेलेक्ट्स बैठकर जब लिखते हैं आर्टिकल्स, तो उसका प्रेशर गवर्नमेंट पर होता है। एडिटोरियल्स वो लोग लिखते हैं, फिर बड़े बड़े लोग बैठकर डिस्कशन कर रहे हैं न्यूज़ चैनल पर, या कोई किताब लिख रहा है या फिर किसी लिटरेचर अवार्ड के फंक्शन में उस मुद्दे पर बातचीत हो रही है। सो कहीं पर भी बड़ी पब्लिक में, ये सब भी इनफॉर्मल ग्रुप हैं, इनका भी प्रेशर क्रिएट होता है। इनको भी आप अपने आंसर्स में इनकलकेट कर सकते हैं, क्योंकि ये भी अल्टीमेटली प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। फिर पता चला कि फॉरेन में इंडियंस रहते हैं, वो भी कुछ मैटर पर प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। जैसे अभी मोदी जी का विजिट हुआ, तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो उनके पॉलिसीज़ के अगेंस्ट प्ले कार्ड लेकर घूम रहे थे या स्पीच दे रहे थे। सो आप देखोगे ये भी एक इनफॉर्मल प्रेशर होता है गवर्नमेंट का। सो ओवरऑल पॉलिटिकल प्रोसेस पर क्वेश्चन है कि इंडियन पॉलिटिकल प्रोसेस हाउ दे इन्फ्लुएंस इंडियन पॉलिटिकल प्रेशर, इस पर आप बातचीत करेंगे, ठीक है। देन हंगर एंड नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ 2017, हंगर एंड पॉवर्टी, दोनों को मैं मार्क कर लेता हूँ अलग, आर द बिगेस्ट challenges for good governance. Okay, so biggest challenges for good governance बोला in India, evaluate क्या बोला है in India still today बोलने का मतलब कुछ खास है, ठीक है ना। evaluate how for successive governments have progressed in dealing with these humongous problems, suggest measures for improvement। देखिए हम ब्यूरोक्रेट बनने जा रहे हैं, सो प्रॉब्लम है तो देन सॉल्यूशन भी होना चाहिए, और मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चंस प्रॉब्लम की शक्ल में होते हैं। सो यू नीड टू राइट सम सॉल्यूशंस आल्सो इफ यू आर डीलिंग विद द प्रॉब्लम्स। सो नाउ नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, हंगर एंड पॉवर्टी। अब हंगर एंड पॉवर्टी आपको दिखाई कहाँ पर देती है, लोग डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, क्लियर है। सो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे पहले है। सो आप देखोगे टॉप हायरार्की से देखें, सो नेशनल गवर्नमेंट के पास क्या पॉलिसी है, ओके, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आप देखोगे कि मान लो हमारे पास नीति आयोग थिंक टैंक है, तो नीति आयोग क्या सोच रहा है, ओके। देन हमारे पास आप देखोगे कि मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग है या फिर एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है, तो ये लोगों तक खाना या भोजन कैसे पहुंचा रहे हैं, हालांकि इनका काम नहीं है डायरेक्टली। सो इनके पास पॉलिसीज़ क्या हैं। फिर हम देखते हैं फूड सिक्योरिटी एक्ट की बात करते हैं, तो फूड सिक्योरिटी एक्ट हमारे पास कैसे मैनेज हो रहा है, हमारे पास क्या इतना फूड ग्रेन है कि हम लोगों को फूड सिक्योरिटी एक्ट की बात करें। और फिर आर्टिकल हमारा 47 न्यूट्रिशन की बात करता है। सो अभी हम हंगर से निपट नहीं पा रहे हैं, आर्टिकल 47 के न्यूट्रिशन वाले वैल्यूज़ को हम कैसे फुलफ़िल करें, बिकॉज अभी हम आप देखेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स SDI की बात करें, तो SDI में जो न्यूट्रिशन वाला मामला है हमारा काफ़ी पुअर है, और ओवरऑल हमारी रैंकिंग काफ़ी नीचे है। सो आप देखेंगे बेसिक फूड अवेलेबिलिटी हमारे लिए बड़ा चैलेंज है, और हंगर एंड पॉवर्टी उसका पार्ट आपको दिख रहा है।
सो पॉवर्टी, गरीबी कैसे परेशान कर रही है देश को, बीपीएल कैटेगरी है, और हम गरीबों को अपलिफ्ट करने का काम कैसे कर रहे हैं। सो आपको कुछ इमोशंस के साथ करना पड़ेगा। वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, कंपेशन टुवर्ड्स वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, पेपर 4 में आप पढ़ते हैं। सो गवर्नेंस में क्या है, गवर्नेंस में इम्प्लीमेंटेशन आपका कैसा है, हमारा ब्यूरोक्रेट कैसा सोचता है, हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कैसा सोचता है, हमारी मिनिस्ट्रीज कैसे सोचती हैं, उनके प्रोग्राम्स क्या हैं, नीति आयोग जब प्रोग्राम बनाती है वो कैसे बनाती है। अब प्लानिंग कमीशन नहीं है, सो अब हमारे पास नीति आयोग है। सो नीति आयोग कैसे सोच रही है इन चीज़ों की इरेडिकेट करने के लिए। और जो हमारे प्रोग्राम्स हैं पॉवर्टी एलिवेशन वाले प्रोग्राम, सपोज हमने उज्ज्वला स्कीम में गैस सिलेंडर दे दिया, ओके, अब क्या इस गैस सिलेंडर से उसकी गरीबी दूर हो रही है या हो क्या रहा है, यू नीड टू अंडरस्टैंड। येस, डेफिनेटली एक प्लस पॉइंट है कि अब उस महिला को लकड़ी उठाकर सर पे लाने की ज़रूरत नहीं है। जंगल जाती थी, लकड़ी उठाकर लाती थी और घर में चूल्हा जलाती थी, और चूल्हा वो जब जलाने के प्रोसेस में जब फूंक लगाती है तो उसके लंग्स पर इम्पैक्ट पड़ता है, उस धुएं से उसके हेल्थ पर इम्पैक्ट पड़ता है, लंग्स पर इम्पैक्ट पड़ता है, उसका घर काला काला हो जाता है, उसके घर में कई बार आग लग जाती है, एक्सीडेंट्स, राइट। सो फिर उस महिला का टाइम जाता है, जंगल जा रही है लकड़ी लाने, पता चला कि जंगल में अटैक हो गया उसके ऊपर। दो तरह के आप देख सकते हैं अटैक हो सकते हैं, एक ह्यूमन बीइंग का अटैक और दूसरे जानवरों का अटैक। तो दोनों ही तरफ जानवर हैं ऐसा हम कह सकते हैं, ठीक है ना। तो वो उनके ऊपर अटैक का डर है। फिर वो जो टाइम ट्रैवल कर रही है उस टाइम पे उनके बच्चे अकेले हैं घर पर, तो ये भी एक चैलेंज है। सो कहीं ना कहीं पर अब उज्ज्वला स्कीम देकर हमने क्या किया, उसके एक हेडेक को हमने, एक नहीं कई हेडेक को हमने कम कर दिया। फिर जल जीवन मिशन के थ्रू अब हमने ड्रिंकिंग वाटर दे दिया, गांव-गांव में हमने पाइप से पानी पहुंचा दिया, घरों में पानी पहुंचा दिया। अब इससे क्या हो गया, उसको पानी लेने के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। उतनी देर में हो सकता है वो कहीं पर एजुकेशन ले ले, कहीं पर क्लास अटेंड कर ले, मे बी पड़ोस में कोई स्कूल हो जहाँ पर हम प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम चला रहे हो, वहाँ पर उनको भेज दें, महिला को टाइम मिल जाए, अपने बच्चों की देखभाल का टाइम मिल जाए, क्योंकि घर में अब पानी आ रहा है। अब उसे हैंडपम्प से या आधे किलोमीटर 1 किलोमीटर से मटके में पानी लाने की ज़रूरत नहीं है। सो ये भी एक बड़ा कंट्रीब्यूशन हुआ। देन प्रधानमंत्री आवास प्रोग्राम योजना की हम बात करें तो अब वो घर बनकर मिल रहा है, और अब उनको हर बार बारिश में अपनी चारदीवारी को ठीक नहीं करना है, हर बार जो खप्पर लगे हुए घर हैं उनको ठीक नहीं करना है, क्योंकि उस पर बंदर कूद जाते हैं और वो तोड़ जाते हैं, या फिर बारिश में आपको एडजस्ट करना पड़ता है, घर के अंदर बारिश में पानी टपक रहा है। तो अब इन सब चीज़ों से, अब इन सब चिंताओं से उनको मुक्ति मिल गई। तो एक तरह से आप देखोगे कि रूरल एरियाज़ में फिर मनरेगा है, हमने 100 डेज़ का उनको एम्प्लॉयमेंट दे दिया। देन नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है, उनके थ्रू हमने बहुत सारा इम्प्लीमेंटेशन कर दिया। फिर इसके बाद आप देखोगे नेशनल रूरल हेल्थ मिशन है, आशा दीदी के थ्रू, आंगनबाड़ी के थ्रू हम बहुत सारे उनको बेनिफिट्स दे पा रहे हैं, आयरन टैबलेट्स दे पा रहे हैं, कैल्शियम दे पा रहे हैं, प्रेगनेंसी के टाइम पर हम उनकी देखभाल कर पा रहे हैं, जननी सुरक्षा कार्यक्रम को हम इम्पोर्टेंस दे पा रहे हैं और उन्हें हॉस्पिटल में फ्री चेकअप हो रहा है। फिर हम चाहते हैं कि IMR MMR भी हमारा कम हो जाए, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट एंड मैटरनल मोर्टालिटी रेट कम हो जाए। सो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हम पुश कर रहे हैं। फिर आफ्टर डिलीवरी, पोस्ट डिलीवरी हम देखते हैं हम उनके न्यूट्रिशियस फूड को सिक्योर कर रहे हैं। फिर ऐसे एम्बुलेंसेज स्कीम चल रही हैं। सो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बनी, जिसकी वजह से अब गांव में एम्बुलेंस आती है हाईवे से। सो इन सब कनेक्टिविटी का मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं पर हम हंगर एंड पॉवर्टी पर काम कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन अभी भी ये जहाँ पर चैलेंज है, आप देखोगे, आपने सुना होगा जैसे यूपी में एक बुजुर्ग महिला की डेथ हो गई, या पुरुष थे, उनकी डेथ हो गई। सो सबसे पहले गाज किस पर गिरेगी, कलेक्टर के ऊपर, बिकॉज ही इज़ द रिस्पॉन्सिबल पर्सन डिस्ट्रिक्ट में, राइट। और उनको ये देखना होगा कि वो उस व्यक्ति तक भोजन क्यों नहीं पहुंचा। जब हम बात करें हमारे पास फूड सिक्योरिटी, हम दूसरे देश को फ्री में राइस दे सकते हैं, गेहूं दे सकते हैं, तो हमारे देश का गरीब आदमी उस तक राइस क्यों नहीं पहुंच रहा है। कोविड में आपने देखा कि प्रधानमंत्री के राहत कोष से ढेर सारा अनाज गरीब लोगों तक पहुंचा है। स्टेट्स में भी अपने अपने स्टेट्स ने सभी ने काम किया है और लोगों को अनाज पहुंचाया। फिर इसके बाद NGOs काम कर रही हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप काम कर रहे हैं, सिविल सोसाइटीज़ काम कर रही हैं।
लोगों तक खाना पहुंचाने में, जैसे शादियों में जो खाना वेस्ट होता है तो एनजीओ कहीं ना कहीं उस बचे हुए भोजन को ले जाकर गरीबों में डिस्ट्रीब्यूट करने का काम कर रही है। फिर पीडीएस का राइस है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का जो चावल है या गेहूं है, जहां अलग अलग जो फूड हैबिट्स हैं उसके अकॉर्डिंग उनको मिल रहा है। मिड डे मील स्कीम में बच्चों को हम दे रहे हैं। सो ओवरऑल हंगर एंड पॉवर्टी को कहीं ना कहीं पर हमने कोशिश तो की है, लेकिन उसके बावजूद भी जो डेटा है वो हमारा कम नहीं हो रहा है। तो इस डेटा पर आपको काम करना होगा। मैंने जो अभी बात की वो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि इनको अलग अलग लोगों ने कैसे कैसे काम किया। सो आंसर आपका 150 वर्ड्स में आना चाहिए, और नहीं हो पा रहा है देन आपको मेजर्स भी सजेस्ट करने की ज़रूरत है कि कैसे हम इसको इम्प्रूव करें। और पॉवर्टी इरिडिकेशन के प्रोग्राम चलाए गए हैं, हंगर दूर करने के लिए हमने काम किया, बट फिर भी आप देखोगे हंगर इंडेक्स में इंडिया की पोजीशन काफ़ी पुअर है। इनफैक्ट श्रीलंका, बांग्लादेश से भी कुछ मामलों में हम नीचे आ जाते हैं। सो ये सोचने वाली बात है कि भारत जहाँ पर इसको एक हम मानते हैं कि सरप्लस प्रोडक्शन हो रहा है, ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद हम काफ़ी कुछ प्रोडक्शन कर रहे हैं सरप्लस, और काफ़ी कुछ एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ढेर सारे हमारे एग्रीकल्चर किसान भाई हैं, वो बहुत कुछ उगाते हैं, फिर भी क्यों ऐसा हो रहा है कि लोग भूखे हैं आज भी, ठीक है ना। सो ये जो हंगर वाला प्रॉब्लम है इसे सॉल्व करने की ज़रूरत है। खासकर गांव से जो शहरों में उठकर आ जाते हैं उनके साथ भी बहुत बड़ा चैलेंज है। गांव में भी है, ऐसा नहीं कि सभी के पास सब कुछ है। गांव में भी आप देखोगे लोग कई बार एक टाइम खाना खाकर रह जाते हैं क्योंकि उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, और फिर इसी बहाने वो आप देखोगे कि पॉवर्टी उनको परेशान करती है। सो इन चीज़ों का सॉल्यूशन क्या होगा, ये हमें एडमिनिस्ट्रेटिव डायमेंशन से सोचने की ज़रूरत है। बिकॉज गुड गवर्नेंस हमारा कब होगा? गुड गवर्नेंस ये नहीं है ना कि आपने कंप्यूटर लगा दिया और बोला भाई साहब आपके गांव में सारा काम ई गवर्नेंस से होता है। वो बोल रहा है साहब मुझे खाना कौन देगा? सो हमारा सोशल जस्टिस, व्हाट वाज द सोशल जस्टिस? आपका रोटी, कपड़ा और मकान, दिस इज योर सोशल जस्टिस। अब यही फुलफिल नहीं है, और उसके बाद इकोनॉमिक जस्टिस क्या है? सस्टेनेबिलिटी ऑफ दिस रोटी, कपड़ा एंड मकान। ये सस्टेनेबल नहीं है तो फिर आप उसको पॉलिटिकल जस्टिस की बात करते हो तो ये तो इनकम्प्लीट हो गया, राइट। सो पहले आपको मिनिमम सोशल जस्टिस की बात करनी पड़ेगी, रोटी, कपड़ा, मकान सिक्योर करना पड़ेगा। सो रोटी इज़ द प्राइमरी टर्म, राइट। सो वो पहले आपको देखना होगा, उसके बाद ही सारी चीज़ें होंगी। सो इस कंटेक्स्ट में ये क्वेश्चन ऐसे डील होगा। नाउ 17 का एक और क्वेश्चन, द एमरजेंस ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स in contemporary times points to the slow but steady withdrawal of the state from developmental activities. Okay, examine the role of the SHGs in developmental activities and the measures taken by the government of India to promote the, तो ये बताना है आपको फिर डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ में कैसे हो रहा है, ठीक है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का डेवलपमेंट पढ़ते हुए आते हैं, सो आप देखेंगे ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, देन न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, देन न्यू पब्लिक मैनेजमेंट तक आते हैं, दैट वाज 1991। अब यहाँ से आप देखोगे कि गवर्नमेंट का स्टाइल चेंज हुआ है। पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस की हम बात करते हैं, पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस की बात करते हैं। अब पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस में काफ़ी कुछ आ जाते हैं, जैसे आप देखोगे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की बात करें हम, एनजीओस की बात करें हम, देन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, ये कब आते हैं हमारे देश में? 1992 के बाद आते हैं। सो इसके ठीक बाद आ रहे हैं, राइट। उसके बाद आप देखोगे कि हमने और भी प्रेशर ग्रुप्स को भी हमने शामिल किया, देन सेल्फ हेल्प ग्रुप को हमने शामिल किया। So self-help group is a basically a small group of 10 to 15 women, and they are working for some commercial activities like and they are getting help from microfinance institutions. So उनको छोटा छोटा लोन मिलता है, and on the basis of that loan they have started their own business, and that requires small investment like 5,000, 10,000, 20,000, not more than that. Okay, and easily they can pay their loan interest also, and there is a no problem of NPA in this mechanism, because यहाँ पर क्या है, वो बहुत बड़ा लोन नहीं दे रहे हो आप उनको, डूब भी गया तो थोड़ा ही पैसा डूबता है, और मिल रहा है तो फिर बढ़िया स्टडी है, एक आई मीन कंसिस्टेंसी बेसिस पर आपको इंटरेस्ट भी मिल रहा है। सो दैट इज़ द बेनिफिट ऑफ दिस माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। सो इसे आप पढ़ेंगे सिलेबस में। सो बात हो रही थी सेल्फ हेल्प ग्रुप की, तो इन सभी के थ्रू अब गवर्नमेंट कैसा है? पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस है। अभी मैंने बताया कि जब आप देखोगे 1992 के पहले
डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास लोअर बॉडीज में कुछ भी नहीं है, ऑफिशियल आई मीन कॉन्स्टिट्यूशनली हमारे पास कोई भी चीज़ नहीं है। लेकिन अब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अकेला नहीं रहा, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के नीचे आप देखोगे अब हमारे पास पंचायती राज है, अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, देन सिविल सोसाइटी है, एनजीओज हैं एंड मेनी मोर। इन सभी के थ्रू अब क्या हो रहा है कि जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उनको इन सभी का कोऑर्डिनेशन मिल रहा है and district administration getting help from various institutions and they are doing developmental activities. So for the developmental activities district administration is not alone or administration is not alone there. Okay, so development वैसे भी आप अकेले नहीं कर सकते because development one way communication नहीं है। हमने पार्ट 2 में भी बात किया है, जब सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास मोदी जी कहते हैं, है ना। सो आप देखोगे कि वो क्या है, यही तो है पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस। और पार्टिसिपेशन कब आएगा, मैंने पुराने पार्ट 2 में भी आप देखेंगे मैंने लिंक किया है कि जब आप ट्रांसपेरेंसी लेकर आएंगे, जब एफिशिएंसी लेकर आएंगे, जब अकाउंटेबिलिटी लेकर आएंगे, दैट मीन्स गुड गवर्नेंस के जितने एस्पेक्ट्स हैं लेकर आएंगे आप, तो गुड गवर्नेंस जब आएगा तो फेथ सिस्टम डेवलप होगा, फेथ सिस्टम डेवलप होगा तो पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, पार्टिसिपेशन बढ़ेगा तो वापस गुड गवर्नेंस आएगा, क्योंकि आप डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हो। एंड डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए, डेवलपमेंट दे कैन फील द बेनिफिट्स ऑफ डेवलपमेंट, दे कैन फील द बेनिफिट्स ऑफ डेवलपमेंट। वो कब होगा, जब उनका खुद का इन्वॉल्वमेंट होगा। जब आप खुद किसी काम में इन्वॉल्व होते हैं तो आपको बड़ा अच्छा लगता है कि ये काम मैंने किया। जैसे घर में मान लो कुछ फेस्टिवल है और घर में खाना वाना बन रहा है और किसी बच्चे को काम ना दो तो वो अपना इन्वॉल्वमेंट नहीं मानता है। लेकिन आपको थोड़ा भी कुछ काम दे दिया, हाँ भाई चलो प्याज काटना है, आपको आलू काटना है ना। सो इट्स अ काइंड ऑफ पार्टिसिपेशन। जब आप पार्टिसिपेट करते हैं इट्स अ काइंड ऑफ सेटिस्फैक्शन, यू फील इट, राइट। और उसके थ्रू आपका एक इन्वॉल्वमेंट बढ़ता है, आप इंगेज होते हैं। सो इंगेज करना, इन्वॉल्व करना, ये कब होगा, जब एडमिनिस्ट्रेशन खुद नीचे उतरे और ज़मीन पर आकर काम करे, ग्राउंड लेवल पर। इसी को हम स्ट्रीट लेवल ब्यूरोक्रेसी कह सकते हैं। सो स्ट्रीट लेवल ब्यूरोक्रेसी की ज़रूरत है। किस तरह की ब्यूरोक्रेसी चाहिए, स्ट्रीट लेवल ब्यूरोक्रेसी। सो वो कब होगा, जब आप इनके साथ मिलकर काम करेंगे। सो क्या बोला, इमरजेंस ऑफ दी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। सो ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखिएगा, बार बार ये टर्म आएगा। जीएस में पढ़ना है, ऐसे राइटिंग में पढ़ना है, आपको पॉलिटिकल साइंस में पीएसआईआर में पढ़ना है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ना है, पेपर 2 पब्लिक एड में बहुत इंपॉर्टेंट है सेल्फ हेल्प ग्रुप, राइट। सो और आप स्टेट गवर्नमेंट की न्यूज़ कम पढ़ते हैं, बट मैं चाहूँगा कि ये आपको नेशनल लेवल पर न्यूज़ नहीं मिलेगी, आपको स्टेट लेवल पर न्यूज़ मिलेगी। आप अपने अपने स्टेट, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, उन स्टेट गवर्नमेंट में लोकल सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में आप ज़्यादा पढ़ पाएंगे। सो जिस स्टेट से आप हैं उस स्टेट के सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में स्टडी कीजिए, गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स हैं और देखिए किस तरह से काम हो रहा है। तो जो भी जहाँ स्टेट से हैं वहाँ पर देखने की कोशिश कीजिए, सो उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। और डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ की जब भी हम बात करते हैं, सो डेवलपमेंट एक होलिस्टिक चेंज की हम बात करते हैं, पॉजिटिव चेंज की हम बात करते हैं, मल्टी डायमेंशनल चेंज की बात करते हैं। और ये चेंज कैसे हो रहा है, विद द हेल्प ऑफ पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस। सो आपको ये ध्यान रखना है, 91 के बाद ये ट्रेंड आता है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी हमारा ज़्यादा एम्पावर हुआ 91 के बाद। आप देखोगे पंचायती राज के आने के बाद कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अब उसकी मोनोपोली नहीं रही, हाँ, लेकिन अब उसे पॉजिटिव सपोर्ट ज़रूर मिल रहा है, बिकॉज उनके नीचे लेवल पर और भी लोग आ गए। जैसे पंचायत सीईओ आप बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट में, है ना। सो पंचायत सीईओ कौन होंगे, जो डिस्ट्रिक्ट पंचायत के सीईओ होंगे। फिर इसी लेवल पर इंटरमीडिएट पंचायत जो सेकंड लेयर है, कुछ जगह जनपद भी कहा जाता है, कुछ जगह इंटरमीडिएट पंचायत कहा जाता है। सो आप देखोगे उनके लिए अलग से आपने किसी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर को अपॉइंट कर रखा है, क्लियर, जनपद सीईओ कह दिया जाता है। और पंचायत लेवल पर पंचायत सेक्रेटरी, है ना। हम सब ने पंचायत वेब सीरीज़ देखी है, सो वहाँ पर आपने देखा कि पंचायत सेक्रेटरी होते हैं वो फिल्म के कैरेक्टर, वेब सीरीज़ के कैरेक्टर। सो वो पंचायत सेक्रेटरी हैं, सो वो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी हैं। तो आप देखोगे इन सबके कोऑर्डिनेशन से अब जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है काफ़ी एम्पावर हो गया। अब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का काम क्या है, अब नाउ ही इज़ कोऑर्डिनेटिंग अथॉरिटी, नाउ ही इज़ अ फैसिलिटेटर। वो मैनेजमेंट देख रहा है डिस्ट्रिक्ट का और इन सभी के हेल्प के थ्रू काम कर रहा है। सो सेल्फ हेल्प ग्रुप का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन ऐसे हुआ कि 10, 12, 15 महिलाएं जो काम कर रही हैं गांव में, आप देखोगे कि अब उन्होंने क्या किया, ट्रेनिंग ली और अब उनको क्या करना है, सबसे पहला जो बेसिक काम है उनका,
दैट इज़ अवेयरनेस, ठीक है ना, अवेयरनेस उनकी बहुत बढ़िया हो गई। देन दे आर पार्टिसिपेटिंग इन डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़। जैसे आप देखोगे कि अब उनका पार्टिसिपेशन किस में है, मान लो फिशरीज़ का काम कर रही हैं, अब फिशरीज़ के लिए पानी स्टोर करना है, अब वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, मार्केट में सप्लाई दे पा रही हैं। कुछ सेल्फ हेल्प ग्रुप वहाँ पर क्या कर रही हैं, सब्जी उगाने का काम कर रही हैं, एक तरह का एम्प्लॉयमेंट भी है और गांव वालों को सब्जी भी मिल रही है। फिर गांव में कोई भी एक्टिविटीज़ होती हैं पंचायत से रिलेटेड, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को ही बुलाया जाएगा, क्योंकि बिकॉज वो उस गांव में ग्राम सभा की भी मेंबर्स हैं। सो उनके पास डबल रोल है, एक तो सेल्फ हेल्प ग्रुप की मेंबर्स हैं और ग्राम सभा की भी मेंबर्स हैं, ठीक है ना, उस गांव की मेंबर हैं तो ग्राम सभा की मेंबर, सो रजिस्टर्ड वोटर्स ही ग्राम सभा के मेंबर्स होते हैं। तो आप देखोगे उनके पास डबल रोल है। फिर आप देखोगे नेक्स्ट डे अब उनको काम करना है कि भाई मिड डे मील स्कीम चल रहा है, मिड डे मील स्कीम है, अब इसमें खाना कौन बनाएगा, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं खाना बनाएंगी। सो एम्प्लॉयमेंट भी वहीं जनरेट हुआ, सब्जी भी उनके सेल्फ हेल्प ग्रुप से सब्जी आ रहा है, एक सेल्फ हेल्प ग्रुप वहाँ पर खाना बना कर दे रहा है, एक सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है उन बच्चों की ड्रेस की सिलाई करके देता है, तो एम्प्लॉयमेंट सबके लिए हुआ। इससे अब क्या हुआ कि एक अवेयरनेस के लेवल पर हम देख पाते हैं कि काम होना शुरू हुआ। कल को कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप है, उसको धीरे से आपने कोऑपरेटिव्स में कन्वर्ट कर दिया। अब तो कोऑपरेटिव बनाना इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ऑल्सो, 19(1)(c) में आप देख पाते हो कोऑपरेटिव बनाना फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है, राइट। फिर डीपीएसपी में भी आप देखोगे 43B कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को प्रमोट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट को दी गई है, क्लियर है। सो आप देख पाते हैं कि इन सभी के थ्रू हम सेल्फ हेल्प ग्रुप को एम्पावर कर पा रहे हैं और सेल्फ हेल्प ग्रुप का पार्टिसिपेशन डेवलपमेंट में हो पा रहा है। जब रूरल डेवलपमेंट की बात आती है या रूरल एरियाज़ में हेल्थ की बात आती है, जैसे कोई कैंपेन चलाना है, तो सबसे पहले क्या होगा कि सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो महिला होगी, जो लीडर है, सपोज इनके अंडर में 15 वेमेन हैं, अब ये लीडर हैं, अब इनको क्या कर रहे हैं, हमने फ़ोन किया, ऐसे कई सारे लीडर्स हैं जिनको डायरेक्ट फ़ोन जाएगा, अब ये सभी क्या कर रहे हैं, उस कैंपेन को चलाने में हेल्प कर रहे हैं। तो अभी हमें इन 15 अलग अलग इनको कांटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं, इनके लीडर्स को कांटेक्ट करने की ज़रूरत है। हमने बोला सेल्फ हेल्प ग्रुप की जितनी भी महिलाएं सब आ जाएं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मीटिंग होनी है। अब मीटिंग जो ले रही है कलेक्टर मैडम ले रही हैं, कलेक्टर मैडम ने समझाया विमेन हेल्थ कितना इंपॉर्टेंट है, हाइजीन कैसे मेंटेन करना है। सो गांव में सभी को एक साथ एड्रेस करने के बजाय आपने इन लीडर्स को एड्रेस किया, अब ये जाकर वहाँ पर गांव में समझाती हैं, वापस महिलाओं को अवेयर करती हैं कि सैनिटरी पैड का यूज़ कैसे करना है, या गांव में हाइजीन कैसे मेंटेन करनी है, विमेन हेल्थ को ध्यान में कैसे रखना है, एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी क्या करना है, पोस्ट डिलीवरी, प्री डिलीवरी, इन सारी चीज़ों पर बातचीत हो रही, क्योंकि हम इनको पकड़कर हमने ट्रेनिंग दे दी, क्लियर है। सो आप देखोगे कई जगह पर इनका पॉजिटिव इस्तेमाल दिख रहा है। अभी जैसे आप छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में बहुत सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं जिन्होंने ब्रिटेन में वहाँ का जो ऑर्गेनिक गुलाल है ना, वो गुलाल एक्सपोर्ट किया है, जो होली में इस्तेमाल करते हैं आप, वो एक्सपोर्ट किया है, करीब टनेज में है, काफ़ी बड़ी क्वांटिटी है, मैं क्वांटिटी भूल रहा हूँ। सो अब इससे क्या हुआ, उनको डायरेक्ट इनकम हो रही है। अब वो वहाँ पर छत्तीसगढ़ में आप सभी को पता है कि गौठान एक स्कीम चल रही है, जिसमें गौठान में गाय बैल को सुरक्षा दी जा रही है, वहाँ रखा जा रहा है, उनका जो गोबर जो आ रहा है, उस गोबर से बेसिकली बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी बनाए जा रहे हैं, उसे भी बेचा जा रहा है, दिवाली में दिए बेचे जा रहे हैं, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। सो ये क्या हुआ, एक एम्पावरमेंट है। सो उन महिलाओं का क्या हुआ, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, सोशल एम्पावरमेंट, फिर यहीं पर पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। सो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट वाला क्वेश्चन आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ऑलरेडी पूछा गया है। आप देखेंगे पुराने क्वेश्चन में सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में पूछा जा चुका है। लास्ट 10 to 15 ईयर्स के क्वेश्चन पलटिए, आपको ये क्वेश्चन दिखाई देगा, 2 या 3 बार पूछा जा चुका है, राइट। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो कैसे इनका डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ में आप हेल्प ले रहे हैं, एंड मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रमोट दी सेल्फ हेल्प ग्रुप, आपको बताना है। तो इसमें माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, माइक्रो फाइनेंसिंग की बात आप करेंगे, और इसी पर आप देखेंगे रंगराजन कमेटी को भी हमने बनाया था, जो कि 12th फाइनेंस कमीशन थे, सी रंगराजन उसके चेयरपर्सन थे, और उन्हीं के चेयरमैनशिप में माइक्रो फाइनेंस पर एक कमेटी भी बनाई गई थी, जिस पर ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है प्री और मेंस में। तो ध्यान रखिए, ये सब लिंकिंग है आपस में, और अभी मैं सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ कि करना क्या है। 17 का ही एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। इनिशियली सिविल सर्विसेज इन इंडिया वर डिजाइन टू अचीव द गोल्स ऑफ न्यूट्रलिटी एंड इफेक्टिवनेस। सो 2 कीवर्ड्स हैं, न्यूट्रलिटी एंड इफेक्टिवनेस, ओके, which seems to be lacking in the present context.
सो लैकिंग क्यों है इसको समझने की जरूरत है. डू यू एग्री विद द व्यू दैट ड्रास्टिक रिफॉर्म्स, यस, ड्रास्टिक रिफॉर्म्स आर रिक्वायर्ड इन सिविल सर्विसेज. सो 4 पॉइंट्स हैं. इफेक्टिवनेस एंड न्यूट्रलिटी वर द की पॉइंट्स. लैकिंग है ये दोनों. सो अब हमें क्या चाहिए, ड्रास्टिक रिफॉर्म चाहिए. कैसे? सो दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स. ओके, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स इन इंडिया, इसी के ऊपर क्वेश्चन बनाया गया है. सो अब आप देख पा रहे हो कि जब इस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जा रहे हैं, अब ये पेपर 4 में आ जाए, एथिक्स में आ जाए, पेपर 2 में आ जाए, कहीं भी आ जाए, क्या फ़र्क पड़ता है. रिफॉर्म्स तो आपको पढ़ना चाहिए. यदि आप रिफॉर्म्स नहीं पढ़ रहे हैं, आपके टीचर नहीं पढ़ा रहे हैं, दैट मीन्स आप इनकम्प्लीट पढ़ाई कर रहे हैं. क्लियर है. अगेन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के टीचर से आप पढ़िए, आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगी, बिकॉज वो जस्टिस कर पाएंगे कि क्या क्या रिफॉर्म्स लाए गए हैं और उनका इम्पैक्ट थ्योरी के साथ कैसा है और वो रिफॉर्म्स किस तरह से देखे जाने चाहिए. सो फिर से मैं समझा दूं आपको. क्वेश्चन था कि हमारे जो सिविल सर्विसेज का जो क्रिएशन है, उनका एस्टेब्लिशमेंट है, तो हमें कौन से गोल्स अचीव करने थे. हमें न्यूट्रलिटी एंड इफेक्टिवनेस, हालांकि और भी चीज़ें हैं इसमें, बट क्वेश्चन में 2 ही चीज़ें पूछी हैं. न्यूट्रलिटी मीन्स कहाँ से न्यूट्रल रहना है. देखिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या एडमिनिस्ट्रेशन के 3 गोल्डन रूल्स कहे जाते हैं या प्रिंसिपल्स कहे जाते हैं. एक न्यूट्रलिटी को कहा जाता है, एक कमिटमेंट को कहा जाता है, और तीसरा एनोनिमिटी को कहा जाता है. ओके, न्यूट्रलिटी फ्रॉम द पॉलिटिकल व्यूज़, आपको न्यूट्रल रहना है पॉलिटिकल व्यूज़ से, राइट. और इस बारे में हिस्टोरिकल जब आप जाकर देखेंगे बैकग्राउंड में, तो लोगों को कन्फ्यूज़न हो गया कि जब इंदिरा गांधी ने कहा कि वी आर लुकिंग फॉर कमिटेड ब्यूरोक्रेसी. सो कमिटेड टुवर्ड्स कॉन्स्टिट्यूशन है, नॉट टू दी पर्सन बट टू दी सिस्टम एंड टू दी ऑर्गेनाइजेशन एंड टू दी होलिस्टिक पार्ट ऑफ द कंट्री. सो नॉट टू द इंडिविजुअल. ध्यान रखिएगा. कमिटमेंट, प्राइम मिनिस्टर चूंकि पॉलिटिकल बॉस हैं आपके, सो दैट डजेंट मीन कि कमिटेड ब्यूरोक्रेसी मीन्स ऐसा नहीं है कि आप प्राइम मिनिस्टर के लिए कमिटेड हैं. दैट मीन्स वो गलत भी बोले तो भी आपको करना है, सही बोले तो भी करना है, ऐसा नहीं. कमिटमेंट टुवर्ड्स प्रियम्बल, कमिटमेंट टुवर्ड्स कॉन्स्टिट्यूशन, कमिटमेंट टुवर्ड्स द पीपल, वी द पीपल ऑफ इंडिया, है ना. तो कमिटमेंट में इनके ऊपर कमिटमेंट की बात होगी, तो इनको देखने की जरूरत है दोस्तों. सो वी वर टॉकिंग अबाउट दिस न्यूट्रलिटी. सो न्यूट्रलिटी फ्रॉम पॉलिटिकल व्यूज एंड कमिटमेंट टुवर्ड्स the constitution, preamble, and we the people of India. And what was this one? Anonymity. So being an anonymous, मतलब अनामिक बने रहना. आप अपने नाम के लिए काम नहीं करते हैं, लेकिन धीरे धीरे आप देखोगे कि इन सभी वैल्यूज़ में अभी भी न्यूट्रलिटी इंपॉर्टेंट है, होना भी चाहिए. एंड न्यूट्रल फ्रॉम पॉलिटिकल व्यूज़. लेकिन कई बार आप देखोगे कि ये बड़ा डिलेमा वाला क्वेश्चन होता है कि क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टी काम कर रही है, आप उसके सभी पॉलिसीज़ के लिए काम करते हैं. समटाइम इट लुक लाइक्स कि वो न्यूट्रल नहीं है, इवन दो यू आर वर्किंग, बिकॉज आपको कॉन्स्टिट्यूशनल आपके जो बॉसेज हैं उनकी बात माननी है, बिकॉज वो इलेक्शन से आए हैं, या पॉलिटिकल पार्टी का अपना कोई एजेंडा है, कोई पर्पस है, तो वो आप फुलफ़िल करते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर पॉलिसीज़ एंड ऑल. सो कई बार ऐसा लगता है कि आप न्यूट्रल नहीं हैं. ये हो सकता है, लेकिन जो प्रिंसिपल है वो न्यूट्रलिटी के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है. सो पॉलिटिकल थॉट से आपको दूर रहना है, रिफ्रेन रहना है, और इसीलिए न्यूट्रलिटी का प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है. और अभी आप देखोगे कि हम सिविल सर्विस एक्टिविज़म की बात करते हैं. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सिविल सर्विसेज एक्टिविज़म की बात हो रही है. सो दे आर सपोज टू डू एक्स्ट्रा वर्क, दे शुड बी मोर इनोवेटिव, they should be more responsive one, and they should be responsible for their own work. So इस तरह के जो फीचर्स हैं एक ब्यूरोक्रेट, एक सिविल सर्वेंट के अंदर जो होने चाहिए, उन फीचर्स के बारे में यहाँ पर बातचीत हो रही है. सो आप देखोगे कि इफेक्टिवनेस इन व्हाट सेंस, जो भी काम हो रहा है वो हमारे लास्ट माइल अप्रोच, जो बंदा लास्ट में खड़ा है वहाँ तक हम किस तरह से पहुँचा रहे हैं. पता चला शुरू में तो बढ़िया काम किया, लेकिन ख़त्म होते होते हम भूल गए कि लास्ट में क्या होना है. या फिर सपोज़ हम सड़कें बना रहे हैं, तो एक बारिश में सड़कें धुल गई, हमने ध्यान ही नहीं दिया, फिर सड़क के ऊपर सड़क, फिर उसके ऊपर ऐसे लेयरिंग हमने कर दिया, फाइनली सड़क उखड़ गई. सो इफ़ेक्टिवनेस का मतलब ये होता है कि जो जिस गोल के साथ उसे डिसाइड किया गया था, जिस ऑब्जेक्टिव के साथ उसे डिसाइड किया गया था, वेदर आर वी एबल टू कंप्लीट और नॉट,
दैट इज द इफेक्टिवनेस। ओके, जैसे पल्स पोलियो या प्रोग्राम हमने चलाया, सो पोलियो फ्री का सर्टिफिकेट WHO ने दिया। सो दिस इज इफेक्टिवनेस ऑफ दैट प्रोग्राम। सो वो जो ऑब्जेक्टिव के साथ हम चले, क्या वो हम कर पा रहे हैं या नहीं। जैसे हमने डिसाइड किया कि हमें मैल न्यूट्रिशन ख़त्म करना है, सो मैल न्यूट्रिशन धीरे धीरे क्या हम ख़त्म कर पा रहे हैं। सो इन दैट सेंस आई मीन फैक्चुअली जब आप कैलकुलेट करोगे तो उसे इफेक्टिवनेस कहा जा रहा है। सो इंडियन सिविल सर्विसेज इन इंडिया वर डिज़ाइन टू अचीव द गोल्स ऑफ न्यूट्रलिटी एंड इफेक्टिवनेस। सो न्यूट्रलिटी फ्रॉम पॉलिटिकल अफेयर्स एंड पॉलिटिकल थॉट, तो ये तो हो नहीं पा रहा है, और ज़्यादा हम पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स में घुसे जा रहे हैं। बिकॉज कई बार मिस यूज़ ऑफ पॉलिटिकल मिस यूज़ ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं। जैसे बहुत सारे हमारे देश में देखोगे आप, सो एनफोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, उनका मिसयूज़ कई बार दिखाई देता है, CBI, CVC, EDs। तो इन सब की वजह से भी प्रेशर होता है एडमिनिस्ट्रेशन पर। सो आप कई जगह आप न्यूट्रल नहीं रह पाते। सो इसीलिए क्या बोला, विच सीम्स टू बी लैकिंग इन द प्रेजेंट कंटेक्स्ट। सो बिना किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम लिए बिना, किसी पॉलिटिकल पर्सन का नाम लिए बिना आप इनको लिख सकते हैं। एंड देन डू यू एग्री विद द व्यू दैट ड्रास्टिक रिफॉर्म्स आर रिक्वायर्ड इन सिविल सर्विसेज। अब ये रिफॉर्म का बेस कहाँ से आएगा। अब रिफॉर्म अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है। राइट फ्रॉम 1854 से आप पढ़ना शुरू करते हो मैकॉले कमेटी से, एंड टिल डेट आप इसकी पढ़ाई करते हैं सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन विच वॉज हेडेड बाय वीरप्पा मोइली। सो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ये पूरा एक चैप्टर है, आपको पढ़ना चाहिए। एंड गवर्नेंस और पेपर 4 के लिए भी आपको पढ़ना चाहिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। GS में इंपॉर्टेंट है ये, बिकॉज इस तरह के जब क्वेश्चंस आएंगे, सो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, पुलिस रिफॉर्म्स, ये सब कैसे आप हैंडल करेंगे, इसलिए इस पर पढ़िए। और कई सारे इसके रिफॉर्म्स हैं, कई सारे किए गए हैं रिफॉर्म्स। इंटरनली हमने क्या किया है उनको न्यूट्रल रखने के लिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक एग्जांपल दे देता हूँ, ई गवर्नेंस इज़ द बेस्ट एग्जांपल फॉर इफेक्टिवनेस, and at the same time to be with the preamble of the Indian Constitution is the best example of to be a neutral person, right? So neutrality maintain करने के लिए ऐसा हमें करना पड़ेगा, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है जो इंटरनली आपको मेंटेन करना होगा। सो इंटरनल मेंटेन करने का कोई हमारे पास पैरामीटर नहीं है, कोई मेज़रमेंट नहीं है, कोई हमारे पास मीटर नहीं है जिससे हम मेज़र कर सकें कि आप इंटरनली न्यूट्रल हैं या नहीं। सो आपकी एक्टिविटीज़ में न्यूट्रल हो जाएं, ये कैसे होगा, विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपेरेंसी, विद द हेल्प ऑफ RTI, विद द हेल्प ऑफ वेबसाइट्स, विद द हेल्प ऑफ ई गवर्नेंस। इन सभी की वजह से आप ट्रांसपेरेंट होंगे और आपके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं लगेगा कि आपने पर्टिकुलर कास्ट, पर्टिकुलर रिलीजन या पर्टिकुलर जेंडर का सपोर्ट किया है या नहीं किया है, या उनके अगेंस्ट आप भेदभाव कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को चेक करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस हमारा कितना है, हम थर्ड पार्टी को कितना इन्वॉल्व कर रहे हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप को कितना इन्वॉल्व कर रहे हैं, हम सिविल सोसाइटी, NGOs, इनफॉर्मल ग्रुप्स को या फॉर्मल ग्रुप्स को हम कैसे इन्वॉल्व कर रहे हैं, सो दैट जब ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होगा तो आप किसी एक का फेवर नहीं कर पाएंगे। आप वही करेंगे जो पॉलिसी कहती है, आप वही करेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन या प्रीएम्बल कहता है, राइट। सो आप देखोगे एक बड़े डायमेंशन का क्वेश्चन है, इसको ऐसा नहीं कि आप रट कर या कोचिंग के नोट से रट रटाकर आप पढ़ के इसको बना देंगे, ऐसा नहीं है। फ्रेंड्स, आपको अपना दिमाग भी लगाना चाहिए और थोड़ी मेहनत कीजिए, आप देखेंगे इन क्वेश्चंस को आप हैंडल कर पाएंगे बहुत अच्छे से। देन विल गो विथ नेक्स्ट क्वेश्चन। E-governance is not only about utilization of the power of new technology, but also much about critical importance of the use value of information. This is very important. So आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन, अगेन इट्स अ पार्ट ऑफ पेपर 2 एंड पेपर 4 बोथ, और ऐसे राइटिंग में भी आएगा, आता भी है और आ भी चुका है। ओके, सो E-governance इज नॉट ओनली अ टेक्नोलॉजी, राइट, बट क्या बोला, क्रिटिकल इंपॉर्टेंस ऑफ द यूज वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन। अब ये जो इंफॉर्मेशन है, ओके, इंफॉर्मेशन, जैसे आपने देखा एक क्वेश्चन आया कि इंफॉर्मेशन इज द रॉ मटेरियल ऑफ नॉलेज, ठीक है, एक क्वेश्चन आया है कि सूचना ज्ञान का कच्चा माल होता है, ठीक है। सो ये भी क्वेश्चन उसी तरीके से है। सो अब यहाँ पर क्या बोला, इंफॉर्मेशन मीन्स व्हाट। जब हम इंफॉर्मेशन की बात करते हैं, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा, कलेक्शन ऑफ डेटा, ओके। इंफॉर्मेशन की बात करें तो इसमें कोई डेट हो सकती है, कोई क्वांटिटी हो सकती है, कोई नेम हो सकता है, लाइक वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट। और इंफॉर्मेशन की जब हम बात करते हैं
तो इन्फॉर्मेशन का मिलना इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट क्या है कि मेरे पास यूज़ क्या है। जैसे हम कहते हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन, सो व्हाट डज इट मीन बाय इन्फॉर्मेशन। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि इन्फॉर्मेशन है क्या और हमें राइट क्यों मिला है इन्फॉर्मेशन पाने का। तो कोई भी इन्फॉर्मेशन, कोई भी जानकारी, हिंदी में कहूँ तो सूचना या जानकारी, अब वो जानकारी या इन्फॉर्मेशन किसके बारे में है, क्लियर है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या बोला, यूज़ वैल्यू, आई मीन उसका यूज़ वैल्यू क्या है, हम किस तरह से उसे यूज़ करना चाहते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लो हमने आरटीआई लगाई और आरटीआई लगाने के बाद हमें ये पता चला, हमने एक पर्टिकुलर आरटीआई लगा दिया कि हमारे देश में या किसी एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में जो स्कूल एनरोलमेंट है उसमें गर्ल्स का एनरोलमेंट रेशियो क्या है। मान लो ये हमने आरटीआई लगाया, अब गर्ल्स का एनरोलमेंट रेशियो पता चला हमारा कम है। सो व्हाट आर दी रीजंस, अब ये इन्फॉर्मेशन है कि पता लग गया हमें रेशियो, अब उसे करना क्या है। अब आपको पता लग गया कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, और उसमें भी गर्ल्स का आपको पता चल गया कि गर्ल्स का एनरोलमेंट रेशियो बहुत लो है, ठीक है, आपको पता चल गया कि लो है। अब ये पता लग गया लो है, अब इसका करेंगे क्या, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसको बेस बनाकर क्या हम एनालिसिस करें कि वो बच्चियां स्कूल नहीं जा रही हैं, क्या वहाँ पर सिक्योरिटी, अब आपका क्रिटिकल एनालिसिस होना चाहिए कि आर देयर एनी सिक्योरिटी रीजंस। ऐसा तो नहीं कि स्कूल और उनके घर के बीच डिस्टेंस काफ़ी है, या उनको साइकिल में आना पड़ता है, या बीच में जंगल पड़ता है, या बीच में ख़राब मोहल्ला है जहाँ पर कोई छेड़खानी करता है बच्चियों से, या फिर स्कूल में टॉयलेट्स नहीं है जिसकी वजह से नहीं आ रही हैं बच्चियाँ, या फिर टीचर या प्रिंसिपल का बिहेवियर ख़राब है जिसकी वजह से नहीं आ रही हैं। ऐसे कई सारे फैक्टर्स होंगे जिनको आप पता लगाएंगे, और पता लगाने के बाद आप उनका सॉल्यूशन निकालते हैं, देन ओनली आप एक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच की ओर काम कर रहे हैं। आपका पेपर 4 कहता है प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच ऑफ अ ब्यूरोक्रेट, ये आपके सिलेबस में लिखा है, राइट। सो इस नज़रिए से जब आप ई गवर्नेंस की बात करते हैं, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ई गवर्नेंस को कनेक्ट करने की ज़रूरत है। और डेफिनेट तौर पर ई गवर्नेंस इज़ अ पार्ट ऑफ गुड गवर्नेंस ऑल्सो। सो गुड गवर्नेंस तब जब आप इन्फॉर्मेशन तो ले लिए, लेकिन उसकी यूज़ वैल्यू क्या है वो आपको समझाने की ज़रूरत है। आखिर आप उस इन्फॉर्मेशन का करेंगे क्या। गूगल में ढेर सारी चीज़ें, अब आपके सामने आप देखोगे, आप यूपीएससी प्रिपेयर कर रहे हो, ढेर सारी इन्फॉर्मेशन है आपके पास, ढेर सारी, हर कमेटी, हर मिनिस्ट्रीज़ की वेबसाइट पर रिपोर्ट्स रखी हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ व्हाट, कि आपके पास यूसेज क्या है, आप कहाँ यूज़ करोगे। आपने पढ़ लिया, ढेर सारा मटेरियल इकट्ठा कर लिया, यूज़ कहाँ करना है, यूज़ वैल्यू क्या है उसकी, राइट। सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड ऑब्वियसली ई गवर्नेंस एक बड़ा पार्ट है, बट सिर्फ ई गवर्नेंस के बारे में नहीं लिखना है, आपको ये देखना है क्रिटिकल इंपॉर्टेंस ऑफ द यूज वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन, वो यूज़ कहाँ करोगे, और इसे एक्सप्लेन करना है आपको 150 वर्ड्स में। सो इसी तरह से हम कई सारे डेटा की बात करें, जैसे एक असर रिपोर्ट आप पढ़ते हैं अक्सर एजुकेशन के बारे में, ठीक है। सो असर रिपोर्ट में आपको पता, या हंगामा रिपोर्ट एक बात आती है न्यूट्रिशन के ऊपर रिपोर्ट, इन सब का आई मीन जो एब्रीवेशन है वो उस बेसिस पर लिया गया। तो असर में आप देखोगे कि उन्होंने बता दिया कि किस डिस्ट्रिक्ट में क्या प्रॉब्लम है। अब उस प्रॉब्लम को लेकर ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब इस तरह का डेटा तो बहुत आ रहा है हमारे पास, हम करेंगे क्या उन डेटा का, राइट। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि डेटा को हम एनालिसिस करके यूटिलाइजेशन करें, उसके बेसिस पर प्रोग्राम बनाएं, उसके बेसिस पर प्रॉब्लम सॉल्व करने का अप्रोच हमारे पास होना चाहिए। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2018 सिटीजन चार्टर। मैं ऑलरेडी इस टॉपिक पर बात कर चुका हूं आपके पार्ट 2 इस वीडियो में। इज एन आइडियल इंस्ट्रूमेंट, क्या बोला, इंस्ट्रूमेंट आइडियल है ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ट्रांसपेरेंसी, ओके, ऑर्गेनाइजेशनल ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, ये भी एक कीवर्ड है अकाउंटेबिलिटी, बट इट हैज़ इट्स ओन लिमिटेशंस। अब ये लिमिटेशंस क्या हैं ये समझने की ज़रूरत है। आइडेंटिफाई द लिमिटेशंस एंड सजेस्ट मेजर्स फॉर ग्रेटर इफेक्टिवनेस ऑफ द सिटीजन चार्टर। सो इसके ऊपर ऑलरेडी मैं स्टोरी कर चुका हूँ, आप देख पाएंगे मेरे पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो में, जो हम सीरीज़ चला रहे हैं एथिक्स एंड गवर्नेंस की। तो उसके इस सीरीज़ में आप पार्ट 1 में तो बेसिक इंट्रो है, पार्ट 2 में बेसिकली मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में डिस्कस किया है। सो सिटीजन चार्टर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर 2 के लिए, पेपर 4 के लिए, पेपर एसए के लिए, इंडियन पॉलिटी के लिए, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। और वैसे भी आप इसे सिर्फ सिलेबस मत समझिए, ये इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में प्रैक्टिस में लाई जाने वाली चीज़ है जो आपको पता होना चाहिए। सिर्फ ये IAS बनने के लिए मत पढ़िए, इन जनरल भी आप एक एस्पिरेंट हैं तो आपको पढ़ना चाहिए, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर इंटरव्यू ऑल्सो।
क्लियर है? तो सिटीजन चार्टर के लिए आप प्रीवियस क्वेश्चन में, प्रीवियस वीडियो में जाकर देखेंगे तो हेल्प मिलेगी। इन शॉर्ट मैं समझा देता हूँ। सिटीजन चार्टर 91 में ब्रिटेन में स्टार्ट हुआ एंड दिस इज चार्टर फॉर द सिटीजन। चार्टर देखिए, प्राइवेट कंपनीज की इंफॉर्मेशन उनके प्रोडक्ट के बॉक्स पे डिस्प्ले में लिखा होता है, व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स, एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट, इफ़ यू हैव एनी कंप्लेन देन कस्टमर केयर नंबर इज ऑल्सो देयर, ईमेल आईडी, फैक्स नंबर, व्हाटएवर। बट ऐसा गवर्नमेंट के साथ नहीं होता। गवर्नमेंट आपको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देती अबाउट देयर सर्विसेज, व्हाट यू आर गेटिंग एंड हाउ यू आर गेटिंग, व्हाट काइंड ऑफ क्वालिटी क्वांटिटी इज देयर, एंड इफ यू आर नॉट गेटिंग देन व्हाट, यू डोंट हैव एनी चॉइस। ओके, so we do have this consumer forum, national consumer forum is there, state consumer forums are there and district consumer forums are there, but still is there immediate solution? Okay, so we don't have any immediate solution, right? एक बार मैंने पिछले वीडियो में भी एग्जांपल दिया है कि सुरेश प्रभु जब रेलवे मिनिस्टर थे तब उनके पास ट्वीट आया कि हम जहाँ सीट पर बैठे हैं वहाँ पानी टपक रहा है। सो बंदे ने उम्मीद नहीं की थी कि ऐसी हेल्प मिलेगी। अगले स्टेशन में उसकी सीट बदल दी गई, लोगों ने आकर माफ़ी मांगी, आई मीन रेलवे के लोगों ने, और उनको पैसा रिटर्न भी किया गया क्योंकि उनको नुकसान हुआ एंड इस तरह की सर्विस। तो आप देखोगे एक ट्वीट से इतना बड़ा चेंज आया हमारे सिस्टम में और वाकई वो बहुत इफेक्टिव था। वहाँ से आप देखोगे लगातार ट्वीट्स पर प्रॉब्लम सॉल्व करने का एक कल्चर डेवलप हुआ और इंडिया में खासकर फॉरेन में तो था। सो आप देखोगे 91 में ये सिटीजन चार्टर आया ब्रिटेन में। 96 में हमारे देश के प्रधानमंत्री ने मीटिंग ली दिल्ली में कि अब हमें नया क्या करना है, और नया क्यों करना था, बिकॉज न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का हम एक बैरियर क्रॉस कर चुके थे। बैरियर तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन एक माइलस्टोन अचीव कर चुके थे जहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस की बात होने लगी। एंड यहीं पर आप देख पा रहे हो क्या है, आपका एलपीजी आ चुका है, क्लियर है, 1991। सो न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की हम बात कर रहे हैं। ये सारे चेंजेस आपको एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज की ओर लेकर जा रहे हैं, जहां पर अब हमारा जो सिटीजन है वो सिटीजन किस में कन्वर्ट हो गया, वो कस्टमर के सी में कन्वर्ट हो गया। ये सिटीजन का सी कस्टमर के सी में कन्वर्ट हो गया, और कस्टमर का सी इंपॉर्टेंट है, राइट? हम उसे कस्टमर नहीं कह रहे हैं, बट हमारा अप्रोच मार्केट अप्रोच होना चाहिए, कस्टमर ओरिएंटेशन होना चाहिए गवर्नमेंट का। तो सिटीजन चार्टर को 97 में फाइनली उस कॉन्फ्रेंस के बाद इंप्लीमेंट किया गया एंड दैट वाज इंप्लीमेंटेड फॉर इंडियन रेलवे, इंडियन पोस्ट। और वहाँ से लेकर 13 तक आप देखोगे, 13 में डॉक्टर मनमोहन सिंह वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री एंड ही डिसाइडेड टू मेक इट कंपलसरी फॉर ईच एंड एवरी मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। स्टेट में कंपलसरी नहीं है बट सेंट्रल लेवल पर कंपलसरी है, राइट? सभी मिनिस्ट्रीज़ की वेबसाइट में आप देखोगे सिटीजन चार्टर का एक बटन मिलेगा, आप क्लिक करोगे तो उनका डॉक्यूमेंट खुलेगा, उसे आप पढ़िएगा। मिशन स्टेटमेंट, विजन स्टेटमेंट, ऑब्जेक्टिव्स, वो उनका प्रोसीजर, एवरीथिंग इज रिटन। ओके, सो दैट मीन्स ये हुआ कि एक गवर्नमेंट कंपनी अपनी ट्रांसपेरेंसी के साथ सब कुछ डिटेल दे रही है आपको कि हम क्या सर्विस दे रहे हैं, हमारा मिशन क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा विज़न क्या है, हम कितने दिनों में करके देंगे, आपको क्वालिटी क्या मिलेगी। और आप देखेंगे, आप जिस भी स्टेट में रहते हैं, अपने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में जाइए, आप देखेंगे वहाँ पर आपको चार्ट दिखाई देगा जिसमें प्राइस फिक्स होगी कि बर्थ सर्टिफिकेट के लिए कितने दिन में आपको काम करके दे दिया जाएगा। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट में सर्विस गारंटी एक्ट इम्प्लीमेंट किया गया है, कुछ स्टेट्स ने किया है और कुछ स्टेट ने नहीं किया, बट सिटीजन चार्टर सभी नेशनल जो बॉडीज़ हैं उनमें कंपलसरी कर दिया गया है। अब उसका एक बड़ा ड्रॉबैक ये है कि वो एनफोर्सेबल नहीं, आई मीन कोर्ट में ले जाकर नहीं आप बात कर पाओगे कि साहब इस मंत्रालय ने एनफोर्स नहीं किया और इस मंत्रालय ने हमें बेनिफिट नहीं दिया और ये फुलफिल नहीं कर पा रहा है, देन व्हाट? तो आप बैड सर्विसेज के लिए या लो सर्विसेज के लिए आप जाके कंज्यूमर फोरम में अप्लाई कर सकते हो यदि वो बात नहीं मान रहे हैं तो, क्लियर है? लेकिन आप इमीडिएटली आपको कोई रिलीफ नहीं मिलता है, बट सिटीजन चार्टर के आने के बाद से आप देखोगे बहुत हद तक कमिटमेंट में कुछ पॉजिटिव चेंजेस आए हैं। दूसरी चीज़ आप देखोगे, अब चूंकि सिटीजन चार्टर डायरेक्टली इम्प्लीमेंटेशन उसका नहीं हो रहा है, लीगल इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है, सो इसमें मोटिवेशन का एक पार्ट रखा गया है कि जो डिपार्टमेंट, जो ऑर्गेनाइजेशन इसे अचीव करेगा, दे विल बी अवॉर्डेड विथ सेवोत्तम अवार्ड। तो सेवोत्तम एक टॉपिक आपको पढ़ना है क्वालिटी सर्विस डिलीवरी के नाम पर। सेवोत्तम, उत्तम सेवा को उल्टा करके देखोगे तो सेवोत्तम आपको मिलेगा, उत्तम सेवा, राइट? सो सेवोत्तम का अवार्ड दिया जाता है चार्टर मार्क स्कीम
ब्रिटेन में चलता है अवार्ड, हमारे देश में हमने सेवोत्तम नाम दिया। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एक मिनिस्ट्री है जिसे प्रधानमंत्री हेड करते हैं। सो आप देखेंगे सेवोत्तम अवार्ड वही लोग मैनेज करते हैं। और इसका बेस्ट एग्जांपल देखना है तो आप अपने स्टेट के पासपोर्ट ऑफिस में जाइए, रीजनल ऑफिस जहां होता है वहां पर आप देखेंगे सर्विस एक्सीलेंसी अवार्ड कहा जाता है इसको, और उनको अवार्ड दिया जाता है। और वहां पर बहुत सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंसी के साथ होंगी। पासपोर्ट के ऑफिस में आप देखेंगे यू विल फाइंड कि फ्लेक्स में लिखा होगा कि कौन सी सर्विस है, क्या फॉर्म चाहिए, किस तरह के डॉक्यूमेंट सबमिट, एक एक चीज़, हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन क्लियर है। ये कस्टमर को बेटर सर्विस प्रोवाइड करने का कॉन्सेप्ट है सिटीजन चार्टर। सो सिटीजन चार्टर के हिंदी नागरिक घोषणा पत्र, नागरिकों के लिए घोषणा कौन करेगी? गवर्नमेंट कंपनीज करेंगी, मिनिस्ट्रीज करेंगी कि वो कौन सी सर्विस दे रही हैं, किस क्वालिटी में दे रही हैं, किस क्वांटिटी में दे रही हैं, किस प्राइस में दे रही हैं, कब तक देंगी, नहीं देंगी, देन व्हाट, क्या सॉल्यूशन है आपके पास। तो इसीलिए आप देखोगे सेवोत्तम का जो मॉड्यूल है, सेवोत्तम का मॉड्यूल क्या है कि एक आपके पास सिटीजन चार्टर होना चाहिए, दूसरा उसको इम्प्लीमेंट आप कैसे कर रहे हैं, उसको चेंज कैसे करेंगे टाइमली, और तीसरा है कि आपका कमिटमेंट कैसा है उसको फुलफिल करने के लिए, दैट मीन्स, और ना हुआ देन कंप्लेन रिजोल्यूशन मैकेनिज्म क्या है आपके पास। ओके, सो कंप्लेन रिजोल्यूशन मैकेनिज्म में आप देखोगे कि कैबिनेट सेक्रेटेरिएट में एक लिंक है जिसमें आपकी कोई भी कंप्लेन है उसे रजिस्टर कर सकते हैं, और दूसरा आप देखेंगे कि जो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल है उनके पास एक लिंक है। तो दोनों लिंक सेम जगह पर जाता है। यदि आपको सेंट्रल मिनिस्ट्रीज में कोई प्रॉब्लम है या और कहीं कोई दिक्कत है तो आप कंप्लेन लॉग इन कर सकते हैं। तो वो कंप्लेन रिजोल्यूशन सिस्टम काम कर रहा है, और आप साइट पर जाएंगे तो वहाँ पर काफ़ी कुछ लिखा गया है कंप्लेन रिजोल्यूशन सिस्टम के बारे में। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप उसको चेक कीजिएगा और लेटेस्ट डेटा वहाँ से निकालेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट सिटीजन चार्टर, और जो लिमिटेशंस हैं अभी कई जगह पर प्रॉपरली डिफाइंड नहीं है, खुद गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ को सिटीजन चार्टर के बारे में नहीं पता है। सो दिस इज़ अ बिग ड्रॉबैक, एंड बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स इसके बारे में नहीं जानते हैं या बहुत इफेक्टिवली उनको इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो वो सिटीजन चार्टर है क्या, ये क्या बताएंगे और इम्प्लीमेंट कैसे होगा। क्लियर है। सो आप देखेंगे सर्विस में अभी भी वो स्मार्टनेस नहीं है। सर्विस गारंटी एक्ट कहीं ना कहीं पर आप देखोगे एक बेटर, इसका रिप्लेसमेंट तो नहीं कहना चाहिए लेकिन बेटर इसको असिस्ट करने के लिए है। स्टेट्स में सर्विस गारंटी एक्ट बनाया गया है, कुछ स्टेट्स ने इम्प्लीमेंट कर दिया है। आई मीन पर्टिकुलर सर्विस पर्टिकुलर डे में आपको मिलेगी, ये उसमें फिक्स किया गया है, और नहीं मिली देन वो फाइन लगेगा। जिस बंदे ने पर्ची काटा था आपको कि इस दिन आपने एप्लीकेशन सबमिट किया और 30 डेज़ के अंदर हम आपको जवाब नहीं दे पाए, तो फिर वो आप कंप्लेन कर सकते हैं हायर अथॉरिटीज़ में। सो दिस इज़ द वे दे आर मैनेजिंग सर्विस गारंटी एक्ट। तो ये सब पढ़ेंगे आप, अभी तो सिर्फ क्वेश्चन में डिस्कस कर रहा हूँ। नाउ 19 सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, सो कैट के बारे में यहाँ पर बातचीत हो रही है, एंड विच वॉज एस्टेब्लिश्ड फॉर रिड्रेसल of grievances and complaints by or against central government employees. Okay, nowadays is exercising its power as an independent judicial authority. तो अभी बिल्कुल रेलेवेंट क्वेश्चन है, अभी आपके यूपीएससी के क्वेश्चंस यहाँ पर गए हुए हैं और लोगों ने यहाँ पर कंप्लेन कर दी, तो ये मामला कैट में चला गया है कि सी सेट में टफ क्वेश्चंस आए हैं, या कुछ क्वेश्चंस में कुछ लोगों को डाउट है कि ये क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑप्शंस जो दिए गए हैं काफ़ी कंफ्यूजिंग ऑप्शंस हैं, यूपीएससी आंसर्स टाइम पर नहीं देती है, मॉडल आंसर्स नहीं देती है, ताकि हम किसको सही माने किसको, ये मामला कैट में चला गया। अब ये है क्या चीज़ ये देखें हम। सो आप देखेंगे हमारे पास अमेंडमेंट है 323 ए एंड 323 बी, राइट। ये आपका 323 कैसे कनेक्ट होगा, 308 से लेकर 323 तक ये सिविल सर्विसेज के बारे में, 315 से लेकर 323 तक यूपीएससी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, इनके बारे में आप पढ़ते हैं। 323 में यूपीएससी रिपोर्ट सबमिट करती है पार्लियामेंट में, प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट पार्लियामेंट में टेबल करते हैं, एंड दिस बिलोंग्स टू आपका अमेंडमेंट हुआ इसमें, और ट्रिब्यूनल्स के बारे में इसमें, राइट। सो इसी ट्रिब्यूनल को हमने इस एक्ट से बनाया और 1985 के आसपास इसको एस्टेब्लिश किया। इनका काम बेसिकली, सपोज किसी आईएएस का प्रमोशन रुक गया, उनकी सैलरी का डिस्प्यूट है, या और कोई ऐसा मैटर जो एक ब्यूरोक्रेट के एंगल से देखा जाए, उसकी सर्विस कंडीशंस की कोई प्रॉब्लम है, तो वो कैट में जा सकता है। सो कैट को जुडिशियल पावर्स हैं, आई मीन उस मामले पर सुनवाई करने के लिए। और अभी स्टेट में भी स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स ला दिए गए हैं, खासकर स्टेट एम्प्लॉयज़ के लिए,
और यहाँ पर बहुत हम CRPC को फॉलो नहीं करते और कंप्लीट जो प्रोसीजर है इनका अपना है। और आप देखोगे कि वहाँ पर जो प्रोसीजर है हमारे एविडेंस सिस्टम है या एविडेंस एक्ट के थ्रू होता है, वो सब यहाँ पर नहीं है बेसिकली। सो मेनली इट इज़ रिलेटेड विद सर्विस रूल्स एंड ऑल। किसी ब्यूरोक्रेट के साथ उसको लगता है कि इनजस्टिस हुआ है तो उसकी सुनवाई फटाफट हो जाती है ना। रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंसेज एंड कंप्लेंट्स बाई और अगेंस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, ठीक है ना। सो ध्यान रखिएगा बाई और अगेंस्ट। सो आप ज़्यादातर इनके अगेंस्ट कंप्लेंट लेकर वहाँ पर नहीं जा पाते हैं। हमारे देश में एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट का अरेंजमेंट नहीं है। फ्रांस में एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट है, आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ते हैं इसको। सो फ्रांस में एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट की अवेलेबिलिटी आपको दिखाई देती है, जहाँ पर पब्लिक डायरेक्ट इनके अगेंस्ट जाकर कंप्लेंट लिखाती है। आज भी हम जो भी कंप्लेंट करते हैं ब्यूरोक्रेट्स के अगेंस्ट, सो गवर्नमेंट के अगेंस्ट हम सू करते हैं और कोर्ट में मामला जाता है। तो यहाँ पर आप देखोगे पहले इनको पावर जो दिया गया था, अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया है, नाउअडेज इज एक्सरसाइजिंग इट्स पावर्स एज एन इंडिपेंडेंट जुडिशियल अथॉरिटी बोल दिया। तो जिस तरह से आप देखोगे कि ये लगभग इनको बेहतर पावर दे दिया गया है, जो भी फैसला सुना रहे हो इम्प्लीमेंट हो रहा है। कम ही ऐसा है कि जहाँ पर लोग जाकर क्रॉस करते हैं या जुडिशरी में जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है वहाँ पर अपील करते हैं, ऐसा कम होता है। और आप देखोगे ये जितने भी ट्रिब्यूनल्स हैं इनको हम जो हमारी रेगुलर जुडिशरी है उनको असिस्ट करने के लिए हमने बनाया है। जैसे ट्राई है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NGT की बात करें, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की बात करें, सो ऐसे बहुत सारे अथॉरिटीज़ बना दी हमने। तो उन सब की हेल्प आप कहाँ पर लेते हो, इस तरह के जितने भी ग्रीवेंसेस हैं उनको दूर करने के लिए आप उनकी हेल्प लेते हैं। सो बेसिकली ये हमारा कैट से रिलेटेड क्वेश्चन था। अभी इनके लेटेस्ट जो डायमेंशंस हैं उनको आप देखेंगे, आपको एग्जांपल डालना होगा कि कैसे ये उस तरह के केसेस को देख रहे हैं, राइट। नाउ व्हाट आर दी मेथड्स यूज्ड बाय फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन टू इन्फ्लुएंस दी पॉलिसी मेकर्स इन इंडिया एंड हाउ इफेक्टिव आर दीज मेथड्स। सो बेसिकली दोस्तों हम देख पाते हैं कि फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन वाला क्वेश्चन डायरेक्टली आ गया और आप देख पा रहे हैं टू इन्फ्लुएंस दी पॉलिसी मेकर्स। तो अब ये कौन हुए, ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन भी हो गए और इनफॉर्मल भी हो गए, ठीक है ना, दोनों तरह के ऑर्गेनाइजेशंस आ गए। सो अभी हमने पिछले क्वेश्चंस में पढ़ा, आप देखो टॉपिक क्लियर होना चाहिए। अभी हमारा जो पर्पस है पढ़ने का, मतलब आप जैसे पढ़ते हैं वो आप कैसे पढ़ते हैं, आप पहले क्वेश्चंस देखते हैं, फिर आपको लगता है कि हाँ क्वेश्चन तो मुझसे बन रहा है, फिर आप क्या करते हैं, क्वेश्चन देखकर सीधे कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं कि हम तो क्वेश्चन लिख लेंगे, ठीक है। और फिर आप सिलेबस भी ढंग से नहीं देखते हैं और आप सब्जेक्ट भी ढंग से नहीं अंडरस्टैंड करते हैं और दो सब्जेक्ट्स के बीच में आप कोई इंटर रिलेशन नहीं निकालते हैं। तो ये आपका तरीका है। अब मैं आपको एक तरीका देता हूँ, मे बी आपने इम्प्लीमेंट किया होगा, कि आपको सबसे पहले सिलेबस देखना है। सिलेबस देखने के बाद आपके पास सब्जेक्ट है, राइट। तो सब्जेक्ट्स को चेक कीजिए। सब्जेक्ट्स देखने के बाद देखिए कि उनमें टॉपिक्स क्या हैं और आपकी कमांड टॉपिक्स पर होनी चाहिए इंक्लूडिंग सब्जेक्ट। जब टॉपिक्स पर है तो सब्जेक्ट पर ऑब्वियसली होगा। अब टॉपिक्स के बाद अब वो क्वेश्चन आपके MCQ टाइप क्वेश्चन है या सब्जेक्टिव क्वेश्चन है या फिर इंटरव्यू में क्वेश्चन है, क्या फ़र्क पड़ता है, बिकॉज टॉपिक क्लियर है आपको। और ये टॉपिक क्या है, ये बार बार पूछा जा रहा है आपको। सेल्फ हेल्प ग्रुप, NGOs, प्रेशर ग्रुप्स, ये सब क्या है, ये बार बार आने वाले क्वेश्चंस हैं। लैंग्वेज बदल दिया, आप हो गए कंफ्यूज क्योंकि आपने एक क्वेश्चन प्रिपेयर कर रखा है। आप सोच रहे हैं कि आपके एक क्वेश्चन प्रिपेयर करने से सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे, ये आपकी गलत फहमी है। आप टॉपिक्स पढ़िए, टॉपिक्स पर कमांड है तो क्वेश्चंस पर कमांड होगी। फिर क्वेश्चन कैसे भी आ जाए, आपको टॉपिक क्लियर है। अभी अभी ये क्वेश्चन मैं समझा के निकला हूँ कि किस तरह से प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, फॉर्मल इनफॉर्मल। आपने देखा कि रोड ब्लॉक कर दिया, ठीक है, ये आप करंट अफेयर से डील कर लोगे कि आपने किसान आंदोलन पढ़ा है, लेकिन यही ट्विस्ट करके फिर आ जाए, मान लो फार्मर्स ना लिखे और इनफॉर्मल ग्रुप लिख दे, देन व्हाट। तो आप हो गए कन्फ्यूज़ कि अरे हमने तो किसान पढ़ाते हैं तो इनफॉर्मल ग्रुप आ गया। सो ऐसे आपको ये कन्फ्यूजन्स होते हैं। सो बी अवेयर, अच्छे से पढ़िए, आप टॉपिक्स के डेप्थ में जाइए, आप देखोगे आराम से निकाल लोगे। सो स्टार्ट रीडिंग लाइक दिस, सिलेबस देखो, सब्जेक्ट्स देखो, टॉपिक्स देखो। यहाँ तक क्लियर करने के साथ साथ पैरेलली आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखते रहना। इस फॉर्मूले को अपनाइए, मैं गारंटी लेता हूँ कि आपके कोई भी क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे, बिकॉज आपको टॉपिक्स पर कमांड है। और टॉपिक्स पर कमांड है तो फिर उस टॉपिक से कैसे भी क्वेश्चंस आ जाएं,
क्लियर है? सो इस पार्ट में हम इतना रखते हैं, नेक्स्ट पार्ट के लिए हम फिर मिलेंगे और फिर उस पार्ट में हम अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का ही एनालिसिस करेंगे। थैंक यू।